السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ناظمین مجلس، محترم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب ایک دینی مجلس میں جمع ہیں، دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اور اپنے اندر ایک جذبہ لیے ہوئے ہیں کہ دین کی باتوں کو سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ آپ نے ابھی مختلف علماء کرام سے مختلف عنوان پر باتیں سنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کے نائب ناظم فضیلت الشیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ تعالی سے آپ نے جماعت اہل حدیث کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے تفصیلی گفتگو سنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں اور کیا چیز ہے۔ آپ نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے فضیلت الشیخ صفی اللہ فیضی حفظہ اللہ تعالی سے آپ نے ماں باپ کی خدمت، ان کا مقام و مرتبہ، بچے اور بچیوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، یہ چیزیں آپ نے تفصیلی انداز میں سنی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور بحسن خوبی آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فضیلت الشیخ شمیم فیضی اختر حفظ اللہ تعالی سے آپ نے ایمان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ چند موضوعات پر آپ نے باتیں ابھی سنی، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اب ناچیز آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہے وہ ہے سودی کاروبار کی مذمت۔ سود کس کو کہتے ہیں، پھر اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، نیز یہ علم ہو جانے کے بعد کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کے باوجود سودی کاروبار میں پڑے رہنا، سود لینا دینا، اس کا انجام کیا ہے اخروی دنیاوی، انشاءاللہ تعالی ان چند نکات پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کی طرف سے ہر گاؤں میں اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور ہر مہینے میں ہمارا ایک شیڈول بنتا ہے کہ اس مہینے میں کہاں کہاں ہم لوگوں کو پروگرام کرنا ہے۔ تو ہم لوگ ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کی طرف سے ہیں، اور جمعیت و جماعت کے تعارف میں آپ نے سن لیا، مقامی جمعیت ہوتی ہے، اس سے اوپر اٹھ کر ضلع لیول پر جمعیت ہوتی ہے، اس سے اوپر اٹھ کر کیا اسٹیٹ لیول پر جمعیت ہوتی ہے، اور اس سے اوپر پر مرکزی جمعیت ہوتی ہے جو ہمارے ملکی پیمانے پر جمعیت ہوتی ہے، جہاں ہیڈ آفس جو ہم لوگوں کی ہیڈ آفس ہے وہ دلی میں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ آپ نے واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں آپ نے یہ اشتہار دیکھا ہوگا کہ 9-10 نومبر جو ابھی آنے والا ہے 2024 کا 9-10 نومبر، اس میں جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے بارے میں اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 9-10 نومبر کو دلی میں اہل حدیث کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو ورلڈ لیول کی کانفرنس ہوگی۔ ملک اور بیرون ملک سے کیا ہے، اچھے بڑے علماء کرام آئیں گے، اور مذاہب عالم میں پورے دنیا میں جتنے بھی مذاہب، ادیان، مذہب یہ پائے جاتے ہیں، ان سب میں انسانیت کا احترام کیا ہے، کس درجے کا ہے، یہ نقطے کیا ہے اس میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج دنیا میں بہت سا خون خرابہ ہے، اور خصوصی طور پر کیا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہر معاملے میں،
उनको परेशान किया जाता है, उनके खून के क्या है लोग दुश्मन बने हुए हैं। ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि मजहब इस्लाम ने और दूसरे मजहबों ने इंसानियत के खून के ताल्लुक से क्या एहतराम रखा है और क्या उसमें क्या है बयानात है, ये सब इसमें इंशाअल्लाह ताला बयानात होंगे। तो आप लोगों को ये दावत दी जा रही है कि आप लोग 100 से क्या है टाइम निकालिए और दिल्ली क्या है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए हाजिर होइए। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फायदा होगा। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं कि आज मुझे जिस चीज पर क्या है आप लोगों के सामने खिताब करना हो वह है सूद। सूद किसको कहते हैं ये पहले आप समझिए। हर आदमी मेरे ख्याल से इस बात को जानता होगा सूद किसको कहते हैं। ये अरबी उर्दू जबान का लफ्ज है, फारसी जबान का असल लफ्ज है, उर्दू में भी ये इस्तेमाल है। इसके माने होते हैं बढ़ोतरी की, ज्यादती की। अंग्रेजी में इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं और अरबी में इसी को अर्रिबा बोलते हैं। इन सब के माने होते हैं बढ़ोतरी के और ज्यादती के। जो भी पैसा कोई आदमी किसी को बतौर कर्ज देता है, आदमी आदमी को कर्ज देता है। आज बहुत सारी तंजीमें हैं जो तंजीम क्या है किसी गरीब को कर्ज देती है, बैंक की शक्ल में आज बैंक मौजूद है, वहां से क्या है लोगों को लोन मिलता है, कर्ज मिलता है। लेकिन इस शर्त के साथ ये कर्ज मिलता है, लोन मिलता है कि उसमें माहना और सालाना क्या है कुछ रकम ज्यादा करके उनसे वापस लेने का है। इसी को सूद कहते हैं, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को अर्रिबा कहते हैं। क्या आप किसी को कर्ज दें या आप किसी से कर्ज लें इस शर्त के साथ कि उसमें आपको ज्यादा वापस करना पड़ेगा, चाहे 1 रुपया ज्यादा वापस करना हो, 5 रुपया ज्यादा वापस करना हो, 10 रुपया ज्यादा वापस करना हो, 100 रुपया ज्यादा वापस करना हो या लाखों में ज्यादा वापस करना हो, इसी को सूद कहते हैं, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को रिबा कहते हैं। इस्लाम ने इस चीज को नाजायज करार दिया है, इस्लाम ने इस चीज को हराम करार दिया है। हमें और आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मर्द हजरात किसी न किसी नाहिए में ये सूदी कारोबार में आज मुलव्वस हैं, लेकिन हमारी मां और बहनें भी आज सूदी कारोबार में मुलव्वस हो चुकी हैं। और मैं वजाहत कर देना चाहता हूं कि हर गांव में ग्रुप लोन की शक्ल में ये बीमारी आम है। हर गांव में क्या है ये शक्ल आ चुकी है कि ग्रुप लोन की शक्ल में सिर्फ मां और बहनों को, औरतों को लोन दिया जाता है। कुछ एजेंट लोग आते हैं कंपनियों की तरफ से, उनका इसमें बेनिफिट होता है, उनका फायदा होता है, उनको परसेंटेज इसमें मिलता है, जितना वो क्या है लोन देगा उतना उसको फायदा उसमें है। इसलिए लोगों को बुला बुला कर क्या है ये औरतों को लोन देते हैं कि औरतें बिजनेस करेंगी, कारोबार करेंगी, घर बनाएंगी, शादी ब्याह लड़का लड़की कराएंगी वगैरह, इन नामों से क्या है उनको लोन दिया जाता है। बहुत सारी मुस्लिम खवातीन वगैरह भी आज इस बीमारी में मुब्तला है कि इस लोन को, इस सूदी कारोबार को क्या इस पैसे को पैसे की लालच में लेती है और फिर वक्त पर अदा नहीं कर पाती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी मां और बहनें घरों में बैठे मेरी आवाज अगर आप सुन रही हैं तो आप तवज्जो से सुने। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बड़ा जुर्म है और बड़ा खतरनाक इसका अजाब है दुनिया में भी आखिरत में भी। अभी मैं दलाइल की रोशनी में आपके लोगों के सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा। खुलासा ये है कि सूदी कारोबार चाहे लोन की शक्ल में हो, तिजारत की शक्ल में हो, कर्ज की शक्ल में हो, जिस नाहिए से भी हो, अगर आपने क्या है लिया है कर्ज सूद के शर्त पर या आपने किसी को कर्ज दिया है सूद की शर्त पर कि ज्यादा लेंगे, ये हराम है। इस्लाम में ये जायज और दुरुस्त नहीं है। इनसे हम लोगों को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, रुक जाना चाहिए हम लोगों को। बहुत बड़ी मुसीबत जब कुरान करीम ने बतलाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूदी कारोबार में तुम्हारी रकम, तुम्हारे पैसे रुपये कहीं अगर फंसे हुए हैं, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ दो वही उसको, मत लो उसे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, अल्लाह से डरो। और सूदी कारोबार में अगर तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा पैसा फंसा है, तुम्हारी रकम फंसी है, उसको तुम नहीं छोड़ दो, मत लो उसको। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका है कि सूद हराम है, इसके बावजूद क्या है तुम सूदी कारोबार में मुलव्वस हो, सूद लेते भी हो, सूद देते भी हो, बिला झिझक उस कारोबार में तुम फंसे हुए हो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, इस बात को सुन लो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलानी जंग है। अल्लाह रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है, इतना बड़ा जुर्म है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सूद के ताल्लुक से बयान फरमाया। और मालूम होना चाहिए कुरान करीम की मुताद्दिद आयतें हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 130 में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, ये हराम कर दिया है शरीयत में। अब ये जायज और दुरुस्त नहीं है। जब कुरान करीम की कई आयतें सूद की हुर्मत के ताल्लुक से, सूद के नाजायज होने के ताल्लुक से, सूद के हराम होने के ताल्लुक से कई आयतें जब नाजिल हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर, आपका आखिरी हज था, आपका पहला हज था और आखिरी हज था, सन 10 हिजरी में आप हज करने के लिए गए और आपके साथ तकरीबन 1.5 लाख सहाबाए किराम मौजूद हैं हज करने के लिए। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सूद मुकम्मल तौर पर हराम हो चुका है, अब इसे छोड़ देना है, अब इस कारोबार में नहीं फंसना है और इसको अब नहीं लेना है और ना तो देना है। और सबसे पहले मैं अपने ही खानदान, अपने ही घर, अपने ही चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूदी कारोबार और उनका सूदी रकम जहां जहां है फंसे हुए हैं, उन सबको मैं क्या है आज से खत्म करता हूं। यहां से अमल शुरू किया और अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे सूदी कारोबार, सूदी रकम, सूदी पैसे जहां भी फंसे हैं छोड़ दो उनके वहीं। आपने ऐलान फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर 1.5 लाख तकरीबन सहाबा किराम का मजमा है, वहां आपने ऐलान फरमाया आज से मुकम्मल तौर पर सूद हराम हो चुका है। अब किसी भी इंसान के लिए किसी भी सूरत में किसी भी जगह जायज और दुरुस्त नहीं है, छोड़ दो। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आपके चचा है और खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों पार्टनरशिप के सूदी कारोबार में दोनों आदमी मिलकर गरीबों को और बाज कबाइल को, कबीला सकीफ वगैरह को सूद में पैसा देते थे और फिर उनसे सूद समेत पैसा वसूल करते थे। ये इनका बिजनेस था, इनका कारोबार था। सूद हराम होने से पहले ये सब बिजनेस चल रहा था, लेकिन जब कुरान ने हराम करार दे दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया, जज्बाई ईमानी देखिए सहाबा को और ईमानी कुव्वत देखिए कि सहाबा किराम ने सुना इतनी बड़ी रकम अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फंसी हुई है, खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रकम फंसी हुई है। जो ही नबी का ऐलान आया, कुरान में हुर्मत का क्या है ऐलान हो चुका, सारे सूदी कारोबार को वहीं से स्टॉप कर दिए, बंद कर दिए। लाखों में सूदी पैसे फंसे हुए हैं, छोड़ दिया, वो 1 रुपया उसके बाद नहीं लिया, क्योंकि हराम हो चुका है, लेना जायज नहीं है। ये पक्के मोमिन थे, सच्चे मोमिन थे कि कुरान का ऐलान आने के बाद, नबी का ऐलान आने के बाद अब उसमें हाथ नहीं लगाना है। ये चूंकि हराम है, ये चूंकि जायज नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अपने ईमान का जायजा लीजिए। 1400 साल से हम सूद के बारे में सुन रहे हैं कि सूद हराम है, सूद हराम है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। इसके बावजूद आज क्या है 90 नहीं 99% मुसलमान क्या है सूदी कारोबार में मुलव्वस है। और अफसोस तो इस बात पर है कि मर्द हजरात अभी तक क्या मुलव्वस थे, हमारी माँ और बहनें भी क्या है इसमें मुलव्वस हो चुकी हैं ग्रुप लोन की शक्ल में। कितनी अफसोस की बात है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमें अब इनको छोड़ देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। दुनिया और आखिरत में बड़ी तबाही है, लानतें हैं, उखरवी क्या है अजाब है, और दुनिया में भी क्या है इसकी वजह से बरकतें नहीं होती हैं। आइए मैं आपको बतलाऊं कि सूदी कारोबार में इल्म हो जाने के बाद की हराम है, इसके बावजूद क्या है इसमें फंस जाना और लेन देन करना। दुनिया में इनके नुकसानात क्या है, आखिरत में इनके नुकसानात क्या है। अब सुनिए इसको। दुनियावी नुकसान तो पहले यह है कि जो आदमी सूदी कारोबार में मुलव्वस है, सूद लेता देता है, बेचैनी की जिंदगी गुजारता है, उनको कभी सुकून नहीं मिलता है, दिमागी तवाजुन सही नहीं रहता, वो एक आदमी लालची बन जाता है, हरीस बन जाता है। गरीबों के तई, फकीर मिस्कीन और बेवाओं और यतीमों के तई उनके दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं होता, हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो सिर्फ पैसे को लूटने में लगा रहता है। एक गरीब सिसकियां मारकर उनकी कदमों के नीचे क्या है तड़प कर मरना वो देखना गवारा कर लेता है, लेकिन 10 रुपया बगैर किसी सूद के उनको ताउन करना, उनको मदद करना इनको गवारा नहीं होता है। ये सूद खाने वाले लोगों के अंदर एक हिर्स और लालच पैदा हो जाती है, मुआशरा हमारा तबाह होता है इसकी वजह से। गरीब और मालदार में एक जुदाई हो जाती है और दोनों में क्या है बाकायदा तौर से दूरियां बनने लगती है कि हर गरीब मालदार को जो बगैर सूद के पैसा नहीं देता है उन पर लानतें भेजता है, गरीब गालियां देता है उनको अंदर से, बुरा भला कहता है उनको अंदर से। अगरचे वो गरीब उनसे क्या है मजबूर में क्या है पैसा भी लेता है सूद में, लेकिन अंदर से गाली भी देता है।
ये नुकसानात है दुनिया में। आदमी समझता है कि सूद हम ले रहे हैं या दे रहे हैं जिसमें माल बढ़ रहा है, नहीं, माल नहीं बढ़ता है। कुरान ऐलान करता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है, तबाह करता है और सदका व खैरात को बढ़ाता है। जो आदमी जितना सदका व खैरात करेगा, ज़कात देगा, नफली सदका करेगा, उनके माल में उतनी ही बरकतें होगी। उनको लगेगा देखने में 10 रुपया हमने दे दिया, 20 रुपया हमने दे दिया, देखने में लगेगा घट रहा है, नहीं, अल्लाह कहां से बरकत देगा उन्हें हिसाब तक नहीं होगा। और जो आदमी सूदी कारोबार में मुलव्वस है, उनको लगेगा कि सूद की वजह से हमने लाखों कमा लिया है, लेकिन पैसे किधर से निकलेंगे उन्हें एहसास भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क्या है उनके घरों में मुसल्लत कर देगा और ऐसे ऐसे परेशानियों में उनको मुब्तला कर देगा कि लाखों रुपये उनके घर से निकलने लगेंगे। कहीं से एक केस क्या है लगवा दिया, लाखों रुपए घर से निकले चले जा रहे हैं। कोई ऐसी लाइलाज बीमारी अल्लाह ने आपको डाल दी, आप इलाज कराते रहिए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको खिला पिला लीजिए कुछ दिनों तक के लिए। हो रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब? ये हराम खाने वालों की यहाँ लानतें पड़ती हैं, अल्लाह का गजब होता है, उनके माल से बरकतें खत्म हो जाती हैं और घर बेचैनी में वो घराना गुजरता है वगैरह। वक्त नहीं है कि मैं तफसीलन हर पॉइंट पर गुफ्तगू कर सकूं। और जो लोग सदका व खैरात करते हैं उनका माल बढ़ता है, इसलिए सदका व खैरात करने में पीछे मत हटिए। जमीयत जमात के नाम से, मस्जिद और मदारिस के नाम से कोई अगर आपसे जुबान खोले कि 10-20 रुपया 100 रुपया आप दीजिए, तो आप बिला झिझक क्या है आप दीजिए। और उसके बाद क्या है देखिए आपके घरों में बरकतें आती हैं कि नहीं आती हैं। तो ये दुनियावी नुकसानात, मेरी माँ और बहनें जो आज सूदी कारोबार में ग्रुप लोन की शक्ल में मुब्तला हैं, नुकसान देखिए। इस्लाम ने माँ और बहनों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। ये गैर मुस्लिम एजेंट आते हैं मुआशरे में, चौक चौराहे में बैठते हैं, किसी घर में बैठते हैं, औरतें सूद लेने के लिए, सूद में जो पैसा लिया है उसको जमा करने के लिए जमा होती हैं। एक अजनबी मर्द के सामने बेपर्दा होकर हमारी माँ और बहनें क्या है जाती हैं, चिकनी चिपड़ी उनसे बातें करती हैं, हंसी मजाक भी होता है वगैरह, और ये बेपर्दगी के साथ होता है। ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी क्या है माँ और बहनें जो पैसा ले चुकी हैं, वक्त पर अदा नहीं कर पा रही हैं पैसा, उस एजेंडों की तरफ से गालियां आती हैं, गुलोज आते हैं, बुरा भला कहा जाता है, यहां तक के क्या है नौबत पहुंचती है कि पैसे नहीं दे पा रही हैं, उधर से ऑफर दिया जाता है तुम बदकारी कर लो, जिना कर लो, अपनी इज्जत को लुटा लो, तुम्हारे पैसे माफ कर दिए जाएंगे। इस तरह के वाकयात होते हैं और बहुत सारी जगहों में ऐसे वाकयात हुए कि माँ और बहनों ने सूदी पैसे जब और असल माल जब नहीं दे पाई तो बाकायदा तौर पर उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत को नीलाम किया गया वगैरह। बहुत सारी क्या है इस्लामी खवातीन ऐसे 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 अजनबी मर्दों और गैर मुस्लिम एजेंडों के साथ क्या है फरार भी हो चुकी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारे दिलों में ईमान होगा, तुम्हें गैरत आनी चाहिए कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी बेटियां एक अजनबी गैर मुस्लिम के सामने क्या है जाती हैं और इस तरह से बदकारियों में मुब्तला होती हैं और उनसे कर्ज लेकर क्या है उस पैसे को घर में हम यूज भी करते हैं, दुकान भी चमकाते हैं, तिजारत भी चमकाते हैं और घर भी बनाते हैं, बेटी और बेटियों की शादी भी करते हैं और उसकी खातिर क्या है आप अपनी औरतों की इज्जत को नीलाम भी कर रहे हैं। अगर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, एहसास होगा, आज ही से तौबा करेंगे, ना खुद लेंगे सूद, ना देंगे और ना अपनी औरतों को सूदी कारोबार में मुलव्वस होने देंगे। अगर क्या है ऐसे एजेंट हमारे मुआशरे में पहुंचते हैं और इस तरह से सूदी कारोबार में क्या है हमारी औरतों को फंसाते हैं, तो हम उनको वहां से भगाने की कोशिश करेंगे कि ये मुआशरा, ये सोसाइटी इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी सोसाइटी है, मुसलमान यहाँ पर बसते हैं, यहाँ सूद हराम है, देना भी लेना भी, इसलिए ये कारोबार, ये बिजनेस तुम यहाँ मत फैलाओ, जाओ तो कहीं और ले जाओ, यहां से भागो, उनको डांट कर भगाना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि सूदी कारोबार का जो जाल पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है, ये यहूदियों की साजिश है, ये उनका दिमाग है इसके पीछे और उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में सूदी कारोबार का जाल फैला हुआ, चाहे ग्रुप लोन की शक्ल में हो, बैंकों की शक्ल में हो और कर्जों की शक्ल में हो, कंपनियों की शक्ल में हो, तंजीमों की शक्ल में हो, जो भी शक्लें आपको नजर आ रही है, इन सब के पीछे खबीस यहूदियों का हाथ है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब हिजरत करके गए और गैर कौमों से, यहूदियों और नसरानियों से साबिका हुआ, मालूम था
कि ये लोग सूदी कारोबार में मुलव्वस होते हैं, करते हैं और धल्ले से करते हैं। आपने जब उन लोगों से सुलहनामा किया, मुआहिदा किया, ये शर्त भी आपने लिखवाए थे नजरान की यहूदियों और नजरान की ईसाइयों से कि तुम्हें सरजमीन अरब में और यहाँ पर रहने की इजाजत दी जाएगी उस वक्त तक जब तुम सूदी कारोबार जो कर रहे हो उसे छोड़ दोगे, और जिस दिन तुम सूदी कारोबार में फिर क्या है चालू कर दोगे या करने लगोगे उस दिन तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस पॉइंट को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया बाकायदा तौर पर अहदनामे में, क्योंकि आपको मालूम था कि यहूदी खबीस कौन है, ईसाई क्या है, ये इन सब में आज सरगर्म है, और इसकी वजह से मुसलमानों की अकायद और उनके ईमान में जद पड़ते हैं, और इस तरह से मुसलमानों का ईमान खराब होगा, कमाई में हलाल कमाई में हराम कमाई आ जाएगी वगैरह। आपने इस पॉइंट को लिखवाया और आदो मुआहिदा हुआ। अल्लाह के रसूल जब तक जिंदा रहे नजरान के यहूदी और ईसाई सूदी कारोबार को छोड़ दिया, और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, सूदी कारोबार को छोड़ दिया, स्टॉप रखा, बंद रखा। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो उनकी दौर में क्या है, फिर यही ईसाई उभर गए, उभरने लगे, यहूदी उभरने लगे। सूदी कारोबार क्योंकि इनका असल मेन बिजनेस यही है, असल तिजारत इनकी यही है, तो इसमें फिर इन्होंने चालू कर दिया, फिर इस बिजनेस को फैलाना शुरू किया। उमर फारूक को पता चला, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजरान की यहूदियों और ईसाइयों को कहा कि अब तुम्हारे साथ मुआहिदा जो हुआ था नबी का वो खत्म हो चुका था। मुआहिदे में ये था कि जब तक तुम सूदी कारोबार बंद रखोगे तुम्हें रहने दिया जाएगा, और जब तक क्या है तुम नहीं बंद नहीं रखोगे निकाल दिए जाओगे। अब तुमने चूंकि दोबारा चालू कर दिया है हमारे मुसलमानों के अकायद को खराब करने के लिए, ईमान पर हमला करने के लिए, अब तुम्हें सरजमीन अरब में रहने की इजाजत नहीं है, भागो यहां से। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों ईसाइयों को नजरान से जला वतन कर दिया, मुल्क शाम की तरफ भेज दिया। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्त, ये सूदी कारोबार यहूदियों का दिमाग, उनकी साजिश इनके पीछे है। मकसद क्या है? एक तो उन्हें अपनी तिजारत चमकानी है, पैसे लोगों से ऐंठने हैं, और दूसरा मुसलमानों को इस बीमारी में मुब्तला करके उनका अकीदा खराब करना, उनका ईमान खराब करना है। कि मुसलमानों का जब ईमान कमजोर हो जाएगा, अकीदा जब कमजोर हो जाएगा, और इनकी हलाल कमाई में जो सूद के जरिए से हराम कमाई आ जाएगी, हराम की आमदनी आ जाएगी, तो इनकी इबादतें कबूल नहीं होंगी, इनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। फिर हम जैसा चाहेंगे इन पर हमला करेंगे। जब तक ईमान में मजबूत है हमारे हमले कारगर नहीं होते हैं, हम शिकस्त पे शिकस्त खुर्दा होते चले जा रहे हैं, और मुसलमान हम पर हावी होते चले जा रहे हैं। सलेबी जंगों के बाद बाकायदा तौर पर इन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि मुसलमानों के ईमान कैसे कमजोर किया जाए। बहुत सारे शिके हैं, उनमें से एक शिक यह है कि इनकी कमाई में हराम कमाई डाल दो, गैर शऊरी तौर पर ये हराम कमाई डाल दी गई सूद की शक्ल में। अक्सर मुसलमान आज इसमें क्या है, मुब्तला है, और उनका ईमान कमजोर हो चुका। उनकी कमाई जो हलाल थी वो हराम हो चुकी है सूद के कारोबार के जरिए से, इसलिए उनकी इबादतें कबूल हो रही ही नहीं, उनकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही हैं। कि मुसीबतों में फंसे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, गिड़गिड़ा है, दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से बचाओ बचाओ, कहीं से कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कमाई में हराम की आमदनी से हो चुकी है। सुधारने की जरूरत है। मैं दुनियावी नुकसान बतला रहा था, उखरवी नुकसान धुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है, लानत भेजी है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलहु, जो आदमी सूद खाता है, जो आदमी सूद खिलाता है, जो आदमी उसका गवाह बनता है, जो आदमी उसमें लिखता है, ये इन सब पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है कि अल्लाह की लानत है, अल्लाह का गजब होता है इनके ऊपर, अल्लाह नाराज होता है। वक़ालहुम सवाउन, और ये सारे लोग, चाहे सूद खाने वाले हों, चाहे सूद खिलाने वाले हों, चाहे लिखने वाले हों, चाहे गवाह बनने वाले हों, ये सब एक ही दर्जे के मुजरिम हैं, एक ही दर्जे के मुजरिम हैं, कोई फर्क नहीं है, गुनाह में बराबर है, इनका अजाब बराबर होगा। सूद खाने वाले को भी, सूद खिलाने वाले को भी, उस पर लिखने वाले भी, उस पर गवाह बनने वाले को भी, इन सब का अजाब बराबर होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस से सही है, कहते हैं कि सूद के 73 दर्जे हैं, 73 दर्जे हैं सूद के, जिनमें से सबसे आखिरी दर्जा यह है, हल्का दर्जा यह है कि कोई आदमी अपनी मां से निकाह कर ले, अपनी मां से जिना कर ले, यह आखिरी दर्जा है सूद का। 73 दर्जों में आखिरी दर्जा, सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि आदमी अपनी मां से जिना कर रहा है, सूद खाने वाला। कितना बड़ा जुर्म है। मुस्नद अहमद की हदीस अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, हदीस सही है कि दिरहम व रिबन याकुलुहु रजुल व हुवा यअलमु,
एक दिरहम, 1 रुपया कोई आदमी सूद का खाता है, ये जानते हुए कि ये सूद है, ये हराम है, इल्म होते हुए भी उन्होंने क्या 1 रुपये का इस्तेमाल किया, खाया, खिलाया वगैरह। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा, 36 मर्तबा भी जिना करने से बड़ा जुर्म है 1 रुपया सूद का खाना। और मालूम है, 1 मर्तबा कोई आदमी बदकारी करता है, जिना करता है, उसके लिए जहन्नम की अजाब है, जहन्नम की सजा है। अगर दुनिया में उनको सजा नहीं दी गई, इस्लामी सजा जो शादीशुदा के लिए रज्म है, यानी उनको कत्ल किया जाएगा, गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े हैं, 1 साल के लिए जला वतन है। अगर दुनिया में उनको ये सजा नहीं दी गई और उसने बदकारी की, जिना की और बगैर तौबा की इसी हालत में मौत होती है, तो उसके लिए जहन्नम है। 1 रुपया सूद खाना 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आप जो लाखों में खा रहे हैं, कितनी मर्तबा क्या है जहन्नम में जलेंगे, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उखरवी नुकसानात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक हदीस में कि 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में से एक गुनाह सूद का खाना भी है। सही बुखारी की हदीस है कि 7 गुनाह बड़े बड़े हैं, सबकी तफसील में बता नहीं सकता, उनमें से एक बड़ा गुनाह यह है जो इंसान को हलाक कर देगा, वो सूद खाना। हमें रुक जाना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इज़ा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फी क़रयतिन फ़क़द अहल्लु बिअनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह। ये मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और हदीस सही है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, जब किसी बस्ती में, किसी कौम में जिना, बदकारी और ये सूदी कारोबार आम हो जाए कि अक्सर लोग जिनाकारी में मुब्तला हो गए, उस बस्ती और उस कौम के अक्सर लोग सूदी कारोबार में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़क़द अहल्लु बिअनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, तो उसने गोया के अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया है, अल्लाह के अजाब को दावत दे दी है कि उस कौम पर और उस बस्ती पर, उस शहर पर, उस मुल्क पर अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है। आपने ललकार दिया है अल्लाह के अजाब को, जिनाकारी को आम करके, सूदी कारोबार को आम करके। आज अक्सर मुसलमान सूद में मुब्तला हैं। अक्सर बस्तियों में आप जिनाकारी अंदरूनी तौर पर पाएंगे, जायजा लेंगे तो, कि अक्सर मुसलमान बस्तियों में जिनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है। कितना बड़ा जुर्म है। आपने अल्लाह के गजब को दावत दे दिया है, अल्लाह के अजाब को दावत दे दिया है कि कभी भी आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर, आपकी बस्ती के ऊपर, आपके शहर के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर अल्लाह का अजाब आ सकता है। आपने हलाल कर लिया है अपने ऊपर, कभी भी किसी भी शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब नाजिल कर सकता है। पत्थरों की बारिश के जरिए से, तूफान की लहरों के जरिए से, जलजला के जरिए से, और क्या है मुख्तलिफ नाहिए से। अल्लाह की यहां अजाब की कमी नहीं है, किसी भी नाहिए से आपको तबाह कर सकता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, तबाही के दाहने पर हैं, मूली गाजर की तरह काटे भी जा रहे हैं, बस्तियां उजाड़ी भी जा रही हैं, शहरों को तबाह भी किया जा रहा है, मुल्कों को वीरान भी किया जा रहा है। आप टेलीविजन, मोबाइल, अखबार वगैरह में देख रहे होंगे, अभी इजराइल ने फिलिस्तीन को तबाह किया, लेबनान पर हमला हो रहा है, यमन पर हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रहे हैं, हजारों हजार मासूम बच्चे, बच्चियां, मर्द, औरत, बूढ़े सब जाबहक हो रहे हैं, मर रहे, खत्म हो रहे। और मुसलमान उसका क्या है, जर्रा बराबर जवाब तक नहीं दे पा रहा है कि इतनी सारी बमबारियों का हम एक जवाब भी दे दें। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के पास ना तो ईमानी क़ुव्वत रही, न ईमानी जज्बा रहा।